Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Raj Lakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga, representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about job work features in Tally Prime. But before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. We are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and development. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM, and Skill India. So now moving ahead to the today's topic, but before that we'll welcome our speakers. So Raju, are you here? Yes, Hello. ma'am. And okay, Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay, hearty welcome both of you. So now I request Raju and Payal to move on with your presentation. Okay, ma'am. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible, Payal. Okay. Hello, good evening all. Myself, Payal Mistry, representing of behalf of Raj Lakshmi Solutions on behalf of the entire team of Raj Lakshmi Solutions. I would like to welcome all participants present here. So moving ahead to today's topic is the job work features in Tally Prime. The job work means processing for working on raw materials or semi-finished goods supplied by the principal's manufacturer to the job worker. This is to complete a part or whole of the process which result in the manufacture or finishing of an article or on any others essential operations. The person doing the job is called a job worker. तो जब कंपनी कोई भी अपने इन हाउस में न बना के कोई थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है तो हम उसे जॉब वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एबीसी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है और वो अपने ही इन हाउस में बनाती है। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत सी कंपनी अपने होल प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से बनवाती है। तो जब वो कंपनी प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी से रेडी होने के लिए देता है, जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और वो वहां से लेता है, इस प्रोसेस को हम जॉब वर्क प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, जॉब वर्क मास्टर इन Tally Prime. तो इफ यू बिजनेस इन्वॉल्व्स जॉब वर्क असाइनमेंट वेयर यू either delegate the job to a party or have taken up a job for a party, you can record all such transactions in Tally Prime. To track job work details, the transactions will involve certain master's ledger voucher types and stock items where you can specify the details of the job work. जब आपके बिजनेस में जॉब वर्क असाइनमेंट ऐड हुआ है, जहाँ पे आप किसी पार्टी को जॉब देते हैं या किसी पार्टी से जॉब लेते हैं, तो आप सभी ट्रांजेक्शन को Tally Prime में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जॉब वर्क डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए आपके ट्रांजेक्शन में कुछ मास्टर एंड लेजर वाउचर टाइप और स्टॉक आइटम को ऐड होके जहां आप जॉब वर्क का डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हैं। Third point, job work transaction in Tally Prime. In case of the job order in order, the job work receiver gets the job order details of finished goods to be a manufacturer, expected quantity of finishing goods, raw material to be supplied by the principal manufacturing job worker, giver date of delivery or raw material if delivered in a installment, etc. In Tally Prime, user can record job work in order using job order in a voucher. जॉब वर्क इन ऑर्डर में जॉब वर्क का रिसीवर को ऑर्डर मिलता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड, उसके एक्सपेक्टेड क्वांटिटी, रॉ मटेरियल, डिलीवरी एक्सेट्रा। टेलीग्राम में यूजर जॉब वर्कर ऑर्डर वाउचर को यूज करके जॉब वर्क ऑर्डर रिकॉर्ड कर सकता है। Job order summary report. Job order summary report display the summary of all the job work that are outstanding. Job order is on the job worker toward which the raw materials are pending for issues. तो जॉब ऑर्डर समरी रिपोर्ट वो सभी जॉब ऑर्डर का डिस्प्ले करती है जो आउटस्टैंडिंग है। जॉब वर्क पे बताए गए जॉब ऑर्डर जिनके लिए रॉ मटेरियल्स पेंडिंग है, जैसे कि
अब गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स, ऑर्डर्ड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स में जाके ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। फॉर लिसनिंग, गो हेड राजू सर। Thank you, Payal ma'am. It was a nice presentation. Good morning, everyone. Myself, Raju Kamble. Ma'am, my screen is visible. No, it's visible now. Okay. आज हम देखेंगे जॉब वर्क प्रोसेसिंग इन टैली प्राइम। तो हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी मदद से हम F11 में जाके पहले स्टार्टिंग में इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग इसको यस करना है और जॉब इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग इसको भी यस करना है। ये होने के बाद हमें वाउचर को अल्टर करना पड़ेगा। जॉब वर्क अल्टर में जाके वाउचर टाइप जॉब वर्क आउट ऑर्डर इसको यस करके अलो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इसको यस करके हम इसको सेव कर देंगे, जिससे हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर सकते हैं। दूसरा वाउचर है मटेरियल आउट में जाके यूज फॉर जॉब वर्क इसको यस करना है और इसको सेव कर देंगे। तीसरा वाउचर है मटेरियल इन में जाके यूज फॉर जॉब वर्क और अलो कंजम्पशन इसको यस करके हमें यह सेव कर देना है। उसके बाद हमें गोडाउन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने गोडाउन पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। गोडाउन में जाके रॉ मटेरियल गोडाउन है। इसमें हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो रहेगा। ये क्रिएट करके हम सेव कर देते हैं। उसके बाद है जॉब वर्क गोडाउन मतलब पार्टी का गोडाउन रहेगा, जिसमें हम हमारा जो भी रॉ मटेरियल है वो पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए देंगे। और स्टॉक विथ थर्ड पार्टी इसको ये ऑप्शन यस करके हमको सेव कर देना है। इससे हमारा जितना भी जो स्टॉक है वो था पार्टी के गोडाउन में कितना है वो हम इनसे ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा गोडाउन है फिनिश गोडाउन मतलब अपना जितना भी फिनिश गुड्स रहेगा वो ये गोडाउन में हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसको क्रिएट करके हम सेव कर लेंगे। ये होने के बाद हमें अब एंट्री पास करनी है। जैसे हम वाउचर में जाके पहले परचेस एंट्री कर लेते हैं। मैंने परचेस एंट्री रॉ मटेरियल पहले से ही परचेस करके रखा है। ये बेसिक एंट्री है, मैंने करके रखी है। जैसे ये स्टॉक आइटम है रॉ मटेरियल, गोडाउन क्रिएट किया है मैंने, उसके अंडर परचेस किया है। अल्टर में मैंने अंडर ग्रुप रखा है रॉ मटेरियल। ये स्टॉक क्रिएट करके मैंने सेव कर दिया है। मैं ये एंट्री सेव कर देता हूँ। इसके आगे फिर हमें जॉब वर्क ऑर्डर वाउचर क्रिएट करना है। वो क्रिएट करने के लिए F10 वाउचर्स ऑर्डर वाउचर में जाके जॉब वर्क आउट ऑर्डर ये वाउचर दिखेगा। अगर वो ऑप्शन शो नहीं होता तो इधर शो इनएक्टिव में क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरर पार्टी ये पार्टी को हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल देने वाले हैं, तो मैं एंट्री पास कर देता हूँ। जो भी डिस्पैच डिटेल्स है वो इधर डालनी है। ड्यूरेशन जितना लगेगा प्रोसेसिंग के लिए वो डाल देते हैं, जैसे कि 10 डेज। और नेचर ऑफ प्रोसेसिंग मतलब इधर प्रोसेसिंग क्या होने वाला है वो डाल देते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। इसको सेव कर देते हैं। और ये ऑर्डर नंबर है, इधर ऑर्डर नंबर डालेंगे, ऑर्डर नंबर 1। तो मैं अभी जो फिनिश गुड है हमारा वो हमको क्रिएट करना है। जैसे मैंने क्रिएट करके रखा है कंप्यूटर।
इसमें अंडर ग्रुप मैंने लिया है फिनिश गुड, और इसको बिल्स ऑफ मटेरियल ये इनेबल करना पड़ेगा। ये इनेबल करने के लिए F12 में जाके सिलेक्ट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर देते हैं। यस करने से ये वाला ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। इसमें इसको यस करने के बाद हम क्या बनाने वाले हैं वो इधर स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि एक कंप्यूटर बनाने में कितने कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और कितनी क्वांटिटी लगती है, वो सब इधर डालना है। जैसे कि एक CPU, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, एक माउस, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे हम इधर गोडाउन सिलेक्ट करना पड़ेगा। गोडाउन रहेगा मेन लोकेशन, सॉरी रॉ मटेरियल। इधर क्वांटिटी डालेंगे। जैसे हमको 10 कंप्यूटर बनाने हैं तो मैं 10 डाल के इंटर कर देता हूँ। जैसे वो इंटर करेंगे तो उस टाइम पे जितने भी रॉ मटेरियल लगेगा 10 यूनिट को, तो वो प्री डिफाइन कर लेगा। इसको सेव कर देते हैं। और ये कॉस्ट ट्रैकिंग है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये सिलेक्ट करके हम जॉब वर्क ऑर्डर बना देंगे। दूसरा वाउचर है, अभी पार्टी को मटेरियल इशू करना है। जैसे कि मटेरियल आउट, तो हम मटेरियल आउट में जाके इंटर करते हैं। पार्टी है, पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर डिटेल, वो ऑर्डर सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिलअप हो जाएगी। अभी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो थर्ड पार्टी के पास जाने वाला है, तो हम जॉब वर्क गोडाउन ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही इंटर कर देते हैं इधर सब डिटेल्स आ जाती हैं। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब पार्टी वो प्रोडक्ट पे प्रोसेसिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और उसका फाइनल जो प्रोडक्ट रहेगा वो बना के जब देगी, तब हमको मटेरियल इन करना है। जैसे मटेरियल इन करने उसका वाउचर क्रिएट कर लेंगे। मटेरियल इन पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिटेल्स है वो फिलअप कर लेंगे। और कंजम्पशन गोडाउन मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ से कंज्यूम होने मटेरियल कहाँ से कंज्यूम होने वाला है, वो गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं इधर एक विंडो ओपन होती है, नेम ऑफ बॉम नेम मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल। कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेंगे, जो ऑर्डर नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। कॉस्ट ट्रैकिंग को यस कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सेव करते हैं, जो हमारा गोडाउन है फिनिश गुड्स, तो उसके अंडर 10 कंप्यूटर बन के आ जाएंगे। उसके बाद जो सर्विस चार्जेस रहेगा वो पार्टी बिल इशू करेगी, तो उसका हम परचेस इनवॉइस बना लेते हैं। जॉब वर्क चार्जेस जैसे कि 10,000 हम ले लेते हैं। और एक कॉस्ट ट्रैकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी 10 प्रोडक्ट्स है, तो इसमें क्वांटिटी 10 डालने के बाद एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी कॉस्ट आई है ये इधर ऑटोमेटिक ले लेगा, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अभी इसके रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट एनालिसिस में स्टॉक आइटम और कंप्यूटर। जैसे इसको एंटर करते हैं, इसमें पूरी डिटेल दिखाई देती है। जैसे कि 10 कंप्यूटर की ऑर्डर दी थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 10 कंप्यूटर का कॉस्ट इतना है 10,500, और जॉब वर्क चार्जेस मिला के 95,000 आता है, और पूरा टोटल 1,05,000 पूरा टोटल कॉस्ट आता है 10 कंप्यूटर का। तो ये डिटेल हमें
आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग की मदद से हम देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Okay, thank you, Payal and Raju, for your presentation. So, related to the today's session, if anyone have any questions, you can just connect to your key account manager for your any requirement or any support. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the social media and get the updates. Thank you, everyone. So now we'll wind up the session.